Yeah, good morning everyone. I'm sure my screen is visible. So in the last class, we did talk about the sets, its representation, and the types of various sets. Today we'll be talking about various operations on these sets, and for that we just need to understand the meaning of a Venn diagram. So most of the relationship between sets, they can be represented by using certain diagrams referred to as a Venn diagram. John Venn was an English mathematician and logician who did talk about it first. And here we actually use rectangles and certain other closed curves, usually circles. The universal set is represented by rectangles. So let us consider one possible situation. So here U represent a universal set in our case, and A is representing some given set. So given sets will be represented by various circles. So it is possible that I am given with two different sets and they have something common in between. So the diagram would be different. Possibly there can be three different sets A, B, and C. So all three together circles when we draw, the situation may be little bit different. So we'll be consider that one by one. Now, what do we mean by operations on these sets? As in a mathematics, the operations on the numbers referred to as the addition, subtraction, multiplication, and division. So, of course, we cannot add, subtract these sets. But yes, there are certain terms associated with these sets. First of them is the union of sets. So what exactly is meant by union? The union of two sets A and B, and that's a notation for union. U, A union B, is the set of all those elements which are either in A or in B or in both A and B. What does that mean? That if it is a collection of all X, X should be either in A or it should be in B. And if there are certain common elements, we write them only once. Using the Venn diagram, let us understand this situation. So if this is a universal set and these are my two sets A and B, generally we assume कि let's say they have something in common. तो इस तरह से हमने Venn diagram अपना बना दिया when they are intersecting. So what is A union B? This shaded region, either in A or in B, and of course it involves the common thing also. But not only common, the whole shading, this will represent your A union B. Consider one simple example. A आपको given है, B given है. You need to just find their union. So इसके एलिमेंट हों या इसके हों, तो 3, 4, 5, 6, 4 यहाँ भी है बट रिपीटेशन एक ही बार लिखा जाएगा. फिर 6 मैंने देखा इट्स बोथ द साइड्स, तो 6 आ गया और यहाँ से बच गया था 8 एंड 10. तो दिस गिव्स अस A union B. Check out another question. Let A is the collection of all X. X is a prime number less than 10. So definitely we need to list them. 2, 3, 5, 7, right? तो प्राइम नंबर लेस देन 10 ये हो जाएंगे. एंड B क्या दिया है? It is natural number and it is a factor of 12.
तो 12 के फैक्टर सोचिए जरा ध्यान से, 1 2 3 4 6 and 12. All those numbers which divides 12, they are the factors of 12, and we need their union. So as told, union means either in A or in B. So 1 2 3 4 5 6 7 and 12. आप चेक कर लीजिए या इसमें लिखा हो या इसमें लिखा हो. I have already covered both. Check this out. If you have any doubt, you can always raise your hand or unmute yourself. सर अगर ए यूनियन बी को एक सेट मान ले तो ए और बी उसका सबसेट है ना? Yes, of course. A is a subset of A union B. B is a subset of A union B. Perfect. बिल्कुल ये ट्रू होता है रिजल्ट, और ये हम एग्जाम्पल के थ्रू विजुलाइज भी कर सकते हैं. Consider another example. A is x, x किस फॉर्म में है? 2n plus 1, और n क्या है? इंटीजर. अब इसे ध्यान से लिखना. n अगर इंटीजर है तो चेक करिए, n 0 1 2 3 4 या -1 -2 -3 कुछ भी जा सकता है. तो इफ n इज से 0 तो कितना आ जाएगा? 1. n रखा 2, कितना आ जाएगा? 5. n रखा 3, 7 एंड सो ऑन. और साथ में अगर n होता -1, क्योंकि इंटीजर है तो -1 रखकर देखिए कितना आ जाएगा? -1. n को रखा -2, -3, फिर -3 रख के देखा, -2 रखा, -2 रखा तो -4 प्लस वो मैं लिख ही चुका हूं, फिर रखा -3 तो -6 प्लस 1 -5 एंड सो ऑन. ये A आ रहा है. What about set B? It is simply 2n where n is integer. n integer है, n को आपने 0 रखा, 0, फिर क्या आएगा? 2 4 6 8 सो ऑन. और साथ ही साथ n अगर नेगेटिव इंटीजर होता तो -2 -4 -6 and so on. So what is their union? सोचिए जरा ध्यान से. सर ए. सर ऑल इंटीजर्स. सर ऑल इंटीजर्स. यस, गुड. आप चेक करिए, इसमें एक्चुअली सेट ए में अगर आप देखें, ये क्या हो गया है? ऑड इंटीजर्स आ गए, राइट. और बी के अंदर एक तरह से इवन इंटीजर्स आ गए हैं. 0 को भी हम इवन में काउंट करते हैं. तो ये ऑड इंटीजर्स मिल गए, ये हो गए सारे इवन इंटीजर्स. तो मिलाकर एक्चुअल में मुझे क्या मिला है? या ए हो या बी हो. तो दैट गिव्स मी द कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटीजर्स. तो इसका आंसर सिर्फ आप जो बताएंगे वो Z हो जाएगा. Next operation on a set is intersection of sets. Intersection denoted by this, ये U को रिवर्स कर दिया, is the set of all elements which are common to both A and B. कॉमन वाले एलिमेंट हमें देखने हैं. तो अगर आप वेन डायग्राम में यहां देखें ध्यान से, यूनिवर्सल सेट है, ये A और ये B है. तो कॉमन अगर मैं बात करूंगा जो A में भी दिख रहा हो और B में भी, इट रिप्रेजेंट दिस शेडेड रीजन. तो ये वाला कॉमन आया है दोनों में, हेंस दिस रिप्रेजेंट A इंटरसेक्शन B.
तो बेसिक डेफिनेशन यूजिंग नोटेशन जो हमारी होती है सेट बिल्डर फॉर्म की, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। और ये चीज बहुत, ये तो चलो इजी है समझना, इसे लॉजिकली आप रिलेट करिए। देखिए ऊपर वाला पहले जो ये है, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब या एक्स ए में है और एंड आ रहा है, एंड एक्स इज इन बी, एक्स इज इन ए एंड एक्स इज इन बी। बट अगर मैं इसे रिवर्स कर देता हूं, कैसे? इफ एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें x नॉट बिलोंग्स टू a और इस एंड का यहां पर और हो जाएगा, और x डजंट बिलोंग्स टू b। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। चेक आउट द एग्जांपल। सेट a और b दिए हुए हैं, आपको a इंटरसेक्शन b बताना है, तो ये तो इजीली बता सकते हैं। एनीवन? 3 and 5. 3 3, 5, 7. 3, 5 and 3, 5, 7. 5, yes, 3, I 5, could, 7. yeah, 3, 5, 7, ये मुझे कॉमन एलिमेंट दिख गए, दैट इज माय रिक्वायर्ड आंसर। डिसजॉइंट सेट्स, ये एक सिंपल डेफिनेशन है। इन केस इफ टू सेट्स हैव नथिंग इन कॉमन, इफ देयर इंटरसेक्शन इज एन एम्प्टी सेट, तो वो कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट्स। और डिसजॉइंट सेट्स आप लॉजिकली सोच सकते हैं, इफ दिस इज ए एंड से दिस इज सेट बी, Nothing in common. यस दे हैव नथिंग इन कॉमन, इसलिए मैंने इनको अलग अलग बना दिया। ये लो, मैं यूनिवर्सल सेट ये दिखा देता हूं, तो इस केस में ये हो गए डिसजॉइंट सेट। इंटरसेक्टिंग सेट्स, ऑफ कोर्स ये हमने अभी ऊपर जितने भी केसेस लिए थे, इफ देयर इंटरसेक्शन इज नॉट एम्प्टी सेट। यस, चेक आउट दिस क्वेश्चन, आई एम वेटिंग। पहले लिखकर देखिए सेट ए और बी क्या आएंगे। Yes, so set A is क्या है? X नेचुरल नंबर फैक्टर ऑफ 12। ये तो बाई चांस पहले भी लिखी चुके हैं। 1 हो गया, 2, 4, 6 एंड 12। एंड B क्या आएगा? फैक्टर ऑफ 18 बताइए जरा। 1, 2, 3, 6, 9, 18. एंड 18, ठीक है। 18 रह गया था, अभी किसने आंसर दिया है? यस, दिव्यांश। सो 18 भी अपना खुद का फैक्टर होगा। तो अब आपको जब इनका इंटरसेक्शन बताना है, तो कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन क्लियरली हैं 1, 2, 3, 6। इज देयर एनीथिंग एल्स? नो। This is your required answer. Look carefully. This time I am making use of the notation जो हमने यूज किया था ना, close interval, open interval and so on. तो check it out. A का मतलब क्या है? अब अगर मैं नंबर लाइन के ऊपर इसको विजुलाइज करूं, आप यस देखिए, आप ना इसका इजी वे बताता हूँ। 2, 4, 3, 5 सारे पॉइंट्स है ना, तो आप कहो ये रहा 2, 3, 4, 5 एंड ड्रॉ अनदर नंबर लाइन से पैरेलल टू दिस इक्वल साइज। उस पे भी यही पॉइंट इसी के बिल्कुल नीचे लेबल कर देते हैं। अब पहला सेट में ए देख रहा हूँ,
ए क्या है, 2 to 4 ओपन, 2 to 4 और ओपन है तो इसलिए मैंने ओपन ब्रैकेट लगा दिया, ये आ गया सेट ए। सेट बी क्या था, क्लोज्ड 3 है, 3 के ऊपर क्लोज आ गया एंड 5 के ऊपर ओपन है, ये आ गया। अब आप जरा दोनों नंबर लाइन में विजुलाइज करिए कि विच पोर्शन इज कॉमन। कॉमन कुछ पोर्शन दिख रहा है, 3 to 4 3 यहां से यहां में कुछ दिख रहा है स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट और 4 पे नॉर्मल ब्रैकेट सी ब्रैकेट। ये गुड। तो क्या हो जाएगा, क्लियरली देयर इंटरसेक्शन जो हम देख पा रहे हैं, इसने क्या कर दिया, 3 को क्लोज कर दिया, बट यहां पर 4 आ रहा है ऊपर वाले की वजह से ओपन ब्रैकेट। यस, दैट वुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। मेकिंग सर एक ऑफ, बार दोबारा समझा दो। आपके पास ए क्या है, 2 to 4, तो ये रहा 2, ये रहा 4, ये ए से बी तक की बात करी है, ये सॉरी ए है 2 से 4 तक, बीच में कहीं ना कहीं 3 भी रहा है, ये चलो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये 3 है और इसके आगे कहीं ना कहीं 5 भी रहा होगा नंबर लाइन पर। हम क्या चाहते थे, 2 to 4, तो 2 से 4 तक के बीच में ये पोर्शन पूरा आ जाएगा, बट ये एंड पॉइंट हॉलो सर्कल आएंगे, ये हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। फर्स्ट वाला लेवल हो गया, दिस इज सेट ए, ये मैंने अभी ए लिखा है। अब जरा हम बी को देखते हैं, बी के लिए भी थिंक ऑफ अ सिमिलर नंबर लाइन। यहां पर आपका क्या है, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। बट अब बी में क्या हुआ था, 3 इज क्लोज्ड, ये आ जाएगा, और 5 इज ओपन, ये ओपन है, यहां पर ओपन ब्रैकेट था, तो 3 क्लोज से लेकर 5 तक जब आप लेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। अब आप जरा जो मैंने ये ऊपर ए में येलो लाइन ड्रॉ करी है और नीचे रेड लाइन, इन दोनों में पहचानो व्हाट इज द कॉमन रीजन। तो कॉमन अगर आप ध्यान से आइडेंटिफाई करेंगे तो देख सकते हैं ये और ये, इसके बीच में जा रहा है ना ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन दोनों में ही कॉमन सा दिख रहा है। बट अब इन कॉमन में क्या हुआ, 3 यहाँ इंक्लूडेड है, 4 यहाँ एक्सक्लूडेड है, तो 3 को इंक्लूड कर दिया, 4 को एक्सक्लूड कर दिया, hence our answer. I hope it is clear. यस सर। आप नंबर लाइन के बिना भी इसे कर सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो विजुअलाइजेशन थोड़ा इजी एंड कंफर्टेबल रहेगा। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ यूनियन, और ऐसे ही फिर मैं इंटरसेक्शन की बात करूंगा। कम्यूटेटिव लॉ, ये टर्म तो आप 6 से यूज कर रहे हैं, a प्लस बी नंबर्स में b प्लस ए होता है, सेम वे इन केस ऑफ द सेट्स ऑल्सो वी हैव a यूनियन b इज b यूनियन a, and this is referred to as commutative property और commutative law। इसी तरह से हमने स्टडी करा हुआ है एसोसिएटिव लॉ, उसमें क्या होता है, 3 सेट अगर ए बी सी हैं, आप किसी भी ऑर्डर में उनका यूनियन ले लीजिए, पहले ए बी का लिया, फिर सी का बाद में उसके साथ ले लिया, या आपने पहले बी सी का ले लिया फिर ए ले लिया, तो दैट ऑलवेज होल्ड्स ट्रू। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी होती है, ये लॉजिक है, लॉजिकली सोचिए, ए यूनियन फाई ए होगा, या ए में हो या फाई में हो, ए तो दोनों में कम से कम कॉमन आ ही गया। नेक्स्ट होता है ए यूनियन ए, दैट इज अगेन अ कॉमन सेंस, ए ही आएगा,
इडॉम्प्टेंट लॉ इसे कहा जाता है, सेम सेट को अगर हम यूज कर रहे हैं, और यूनियन किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, ये यूनिवर्सल सेट है, तो दैट विल बी क्लियरली यू। फिफ्थ वाला, चलो मैं कहता हूं एक बार हम इसको विजुलाइज करते हैं यूजिंग वेन डायग्राम। सिंपल आइडिया है फिफ्थ वाले पार्ट के लिए। मान लो मेरे पास एक सेट ए था, ये ए है, और ये यूनिवर्सल सेट है, राइट। तो आई एम लुकिंग फॉर देयर यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, या ए में हो या यू में हो, ऑब्वियसली ए वाला हो या यू वाला हो। So ये टोटल शेडेड ही हो जाएगा, एंड दिस विल बी नथिंग बट दी सेट यू, यूनिवर्सल। सो वेरी इजी प्रॉपर्टीज, बट एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वी विल कवर वेरी सून। सिमिलरली इंटरसेक्शन की अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, यूजुअल सिमिलर हैं as far as commutative law and associative laws are concerned. A intersection B is B intersection A. Similarly, किसी भी ऑर्डर में आप तीन सेट्स का इंटरसेक्शन निकालिए। यहाँ ब्रैकेट के यूज को देखना और समझना जरूरी है। यहाँ पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकाला, फिर सी के साथ करा, यहाँ बी और सी का पहले निकाल दिया, फिर ए के साथ, तो दे विल बी इक्वल। ओके, बिफोर आई शो यू द नेक्स्ट स्क्रीन, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन फाई? एनीवन? Sir, A. A. थिंक लॉजिकली। Sir, Phi. ए और फाई में कॉमन क्या है? नथिंग। और ए में फाई, कुछ भी कॉमन नहीं है। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन ए? ये तो इजी है, Is A. चेक दिस आउट। तो फाई के साथ अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन कुछ भी नहीं है, और यूनिवर्सल के साथ क्लियरली दैट विल बी ए। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और वो क्या है, लॉजिकली समझिए और देखिए। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बॉड मास को मत भूलना, ब्रैकेट लगाया हुआ है यहाँ पर। तो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी? ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इंटरसेक्शन। कैसे? ये बी के साथ गया, ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। So look carefully. In fact, अगर मैं कहूं what is A union B intersection C, one can logically think. Yes. Intersection A union. A union C. Good. तो चेक करिए, इस तरह से ये भी हम डिस्ट्रीब्यूट मान सकते हैं। यूनियन को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है विद बी एंड सी। We will verify this using Venn diagram. We are not going to cover the proof of this result, क्योंकि इनके proofs जो algebraically हैं, they are little bit typical and hard. वो हम सिलेबस में नहीं लेते हैं, NCERT में भी नहीं है, और एक्स्ट्रा भी हम सिर्फ एक डी मॉर्गन्स लॉ आएगा उसे लेंगे। अदरवाइज proofs are not considered in our syllabus. बट हम वेन डायग्राम से वेरीफाई बिल्कुल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। ये अनदर ऑपरेशन ऑन दिस सेट है, चेक दिस आउट, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ A and B are two sets, difference
ये लिखा है सम ऑफ द ऑथर राइट लाइक दिस, ए और स्लैश लगाकर बी लिख देते हैं, राइट, बट हम ये नोटेशन यूज नहीं करेंगे। तो ए माइनस बी इज द सेट consisting of all elements which belongs to A but do not belongs to B। A में तो है एंड B में नहीं है, तो वो हमारा होगा A minus B। If A minus B is clear, one can easily understand B minus A। B में तो है बट A में नहीं है वो एलिमेंट। इन जर्नल एक तो सिंपल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस ए। एग्जाम्पल देखते हैं डिफरेंस कैसे। अच्छा, पहले विजुलाइज कर लेते हैं हम शेडिंग वेन डायग्राम से, समझिए। ये यूनिवर्सल सेट है, एप्सिलॉन नोटेशन कुछ ऑथर ये लेते हैं, हम कैपिटल यू ही लेंगे। तो यूनिवर्सल सेट है, दो सेट्स ए बी हैं, तो व्हाट इज ए माइनस बी हेयर एज इट इज शॉन। ए में तो हो बट जितना भी पोर्शन ए वाला था बी में उसे हटा दो। तो लेट मी रिमूव दिस पोर्शन। तो सिर्फ जो ये डॉटेड दिखाया है वो रिप्रेजेंट कर देगा ए माइनस बी। If I do not show you B minus A का Venn diagram, can you all imagine that? क्या हो जाएगा, सिर्फ B वाला होगा और उसमें से A के जितने भी हैं वो आप रिमूव कर दीजिए। तो B वाला पोर्शन, B में तो देखो ये सब कुछ था, बट मुझे क्या करना है, B में से A को माइनस करना है। ए का जितना पोर्शन आया है आप ये वाला ये माइनस करना है, आगे तो ये पहले ही नहीं था, ये माइनस कर दो तो येलो में जो बचा हुआ है ऑफ कोर्स दैट विल बी माय रिक्वायर्ड बी माइनस ए। check this note carefully. Note that the sets A minus B, A intersection B and B minus A, they are mutually disjoint। mutually disjoint, disjoint word हम देख ही चुके हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। mutually आपस में, तो आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर आप इस डायग्राम को यहां ध्यान से देखें, A minus B has nothing common with A intersection B and it has nothing common with B minus A। तो तीनों आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या म्यूचुअली डिसजॉइंट कहलाएंगे। अ क्वेश्चन फॉर यू, बहुत ध्यान से सोचना, इजी है। व्हाट इज A minus B union A intersection B union B minus A? What is the answer? A union B. A union. A union B. Yes, good. It's a simple visualization। मैंने इन तीनों कलर्स का यूनियन ले लिया है और वो हो गया A यूनियन B। अब अगर मैं इसके एल्जेब्राइक प्रूफ की बात करूं तो वो थ्योरम की तरह बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। वी आर नॉट टेकिंग दैट इन आवर सिलेबस। हम फोकस रख रहे हैं कि सिर्फ मैंने वेन डायग्राम को अगर ढंग से विजुलाइज कर लिया, आई कैन इवन आंसर इन अ सिंगल सेकेंड। आई एम श्योर बाकी क्लास भी इन्वॉल्व है, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। Check out this example quickly. A और B दिया है, सिंपली यहां डायरेक्ट लिख ही दिया है।
ए माइनस बी, ऑफ कोर्स ए में है और बी में नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं इसमें से ये हटाना है, ए में से बी हटाना है, तो सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट है, जैसे मैंने देखा 1 कॉमन था इसीलिए 1 हट जाएगा, और फिर मैंने देखा 3 कॉमन है 3 हट जाएगा, 5 इज ऑल्सो कॉमन 5 हट गया, राइट। तो क्या बच गया 2 and 4, दैट विल बी माई a minus b. Similarly, one can write b minus a, and clearly they are not equal. Quickly check out these two examples also. Excuse me, sir. Yeah. Sir, what if A minus B and B minus A are equal? What can we conclude from there? No, they are not equal. They are not equal. I'm giving a situation. अच्छा, आप कह रहे हो कि क्या ये पॉसिबल है? This is what you wanted Yes, sir. to know. Yes, Okay. sir. Difference. I need to find out some example which satisfy this. To my knowledge, I never encountered any situation when they are equal. But still, that doesn't justify कि वो result की तरह हम हमेशा मान लेंगे. I'll just check it out कि क्या ये कभी equal हो सकते हैं. वो कुछ examples मुझे frame करके सोचना रहेगा. ठीक है? In general तो clear होता है वो नहीं है. Counter में particular case that we need to check out. Okay, sir. ये सेकेंड और थर्ड पार्ट हो गया होगा. सो चेक आउट दिस. चारों चीजें पूछ लिया है इसमें. सेट ए और बी आपको गिवन है, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन एंड सो ऑन. सो क्विकली देखते हैं. ए क्या है? x is a factor of 6, 1 2 3 and 6. b क्या हो गया? 1 2 फैक्टर ऑफ 8 लिख रहे हैं, 1 2 4 and 8. तो बस अब a यूनियन b, 1 2 3 4 6 8. इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 1 2. 2. a माइनस b क्या हो जाएगा? 3 एंड 6. 1 और 2 हट जाएंगे, एंड b माइनस a 4 and 8. 4 and 8. Your answer. This is the last thing जो आज हम कवर करेंगे. सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. दिस इज नॉट गिवन इन आवर एनसीईआरटी, बट बहुत सिंपल है समझना. अगर ए और बी दो सेट्स हैं, ए ट्राइंगल बी, ये सिमेट्रिक डिफरेंस जिसको कहेंगे, ये क्या होता है? ए माइनस बी निकाल दो, बी माइनस ए निकाल दो, और उन दोनों आंसर्स का यूनियन ले लीजिए. दैट्स इट. इनफैक्ट अगर मैं इस चीज को विजुलाइज करना चाहूँ यूजिंग दी वेन डायग्राम, वो मैं डायग्राम देना भूल गया. चेक करिए. जैसे ये U है, दिस इज A एंड से दिस इज B. तो अगर मुझे एक्सप्रेस करना है इनका सिमेट्रिक डिफरेंस, तो थिंक लॉजिकली क्या हो जाएगा? A माइनस बी क्या था? इतना पोर्शन था. B माइनस ए क्या था? ये वाला पोर्शन था. इनका यूनियन, ऑफ कोर्स जो ग्रीन शेडेड रहा है, ईदर हेयर और हेयर, तो ये ग्रीन शेडेड विल रिप्रेजेंट योर सिमेट्रिक डिफरेंस. So one can easily attempt this question.
ए आपको गिवन है, बी गिवन है, तो क्विकली बताइए। Sir? या Can we say that A union B, according to this Venn diagram, can we conclude that A union B minus A intersection B is its यस, representation? बिल्कुल यस। सिमेट्रिक डिफरेंस जो हो गया वो वेन डायग्राम से बहुत इजीली आपने सही विजुलाइज करा। यूनियन कर दिया, उसमें से सबट्रैक्ट क्या कर दिया, इनका इंटरसेक्शन। सो दैट वे वी कैन हैव द अनदर डेफिनेशन और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिमेट्रिक डिफरेंस। दिस इज परफेक्ट। करिए, व्हाट इज ए माइनस बी इस केस में? AC. AC. What is B minus A? FG. F and G. FG। और ये क्या है? इन दोनों का मुझे लेना है यूनियन, एंड इनका यूनियन क्या हो गया? ACFG. Your required answer. Any doubt till this step? So here comes your homework for the day. Check this out. This is your NCERT exercise 1.4. All the questions are already discussed, so I don't think I need to discuss even a single question. Union पूछा है of each pair, you can easily find. Next, easily आप चेक कर सकते हैं ये क्या कंटेन कर रहा है, इनके यूनियन बताओ। ये हम निकालना सीख चुके हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। कहीं भी डाउट लगे यू कैन ऑलवेज आस्क एंड स्टॉप मी। चेक करिए यहाँ पर अगेन, अब इंटरसेक्शन की बात करी है, और अगर आप लॉजिकली सोचे ये पार्ट और ए इंटरसेक्शन दिस सेम वाला कोई दिया है, ए इंटरसेक्शन बी नहीं, ये वैसे फॉर्मूला मैं बता चुका हूं ना किसके इक्वल आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन डी। तो वन कैन इजीली फाइंड आउट दीज वैल्यूज। इसमें भी कोई अलग चीज नहीं है, आपको सिर्फ सेट्स को लिखना रहेगा कि इवन नेचुरल नंबर क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, 4 सेट आ गए ए बी सी डी, यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस। डिसजॉइंट का मतलब having their intersection as empty set। फिर डिफरेंस ऑफ द सेट्स की बात करी है, ए बी सी डी डिफाइन करे हैं, जस्ट इट इज फॉर योर प्रैक्टिस। बट जब भी कोई एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप करते हैं, एटलीस्ट टू रिमेंबर आफ्टर सॉल्विंग, वेरीफाई योर आंसर फ्रॉम द बैक। एनसीईआरटी के बैक में सारे आंसर दिए होते हैं, एंड द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। 11th का आंसर बस फाइनली बता दो क्या होगा। Anyone? Set of irrational numbers. Yes. R minus Q है, वो मेरा हो गया सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। कई बुक्स में टी नोटेशन दे दी है, बट कई ऑथर एग्री नहीं करते हैं इस नोटेशन से, इसीलिए मान के चलो इर्रेशनल के लिए कोई स्पेसिफिक नोटेशन नहीं है, आप लिख दो इट इज अ सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कंप्लीट योर एक्सरसाइज 1.4 इन योर रजिस्टर। और 1.4 तक जैसा मैंने बताया गूगल क्लासरूम पे लिंक क्रिएट हो चुका है, आप वो अपलोड कर दीजिए। डू नॉट वेट के कंप्लीट जब मेरा सारे एक्सरसाइजेस हो जाएंगी तभी मैं एक साथ पीडीएफ बनाकर करूं। यू कंप्लीट 1.3 या 1.4, अपने फाइल को रीनेम बहुत ध्यान से करना बिफोर यू अपलोड।
एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 है उसमें एंड सो ऑन। और बाद में जब कुछ काम और होता है आप नया पीडीएफ सेम लिंक में अपलोड कर देंगे। With this, I end the class. You can leave the meeting now. Thank you, sir. Okay, जी। सर